So last time we talked about certain fundamental things which make sure that how a laser works. We talked about population inversion. We talked about an intermediary state which was called, what was it called? Metastable state, due to which those certain atoms were having enough time in an excited state so that population inversion is achieved and hence lasing action could take place. Today we will be talking about actual physical components of a laser, that all of those things, all of those ideas that we talked about, how those ideas can be realized in real world. So being an engineer, you always have to have both of the things. You first need to have certain kinds of ideas and algorithms, and you also need certain hardware through which those algorithms and ideas could be realized in the real world. So this is that second part of the thing. तो यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा in this diagram you guys are seeing there is a pump here, there are two mirrors, one of them is partially reflecting and another one is 100% reflecting, and this whole thing is called an optical cavity, and on the partial reflecting side you guys are seeing that there is a laser beam which is being formed. So effectively इस diagram को अगर तुम समझ लेते हो तो पूरा laser का idea समझ में आ जाएगा. First of all, what exactly is this thing in the middle? Active medium. So any medium in which those particular atoms can be excited to a higher state, and after that when population inversion is achieved and they try to fall back to the ground state, if that difference in the excited and ground state, energy difference, if that is that much कि जो photons generate हो रहे हैं, those photons will have a particular precise frequency of light, then that particular medium is called an active medium. So in short अगर हम बात करें ऐसा मीडियम जिसको अगर तुम एनर्जी प्रोवाइड करते हो किसी भी फॉर्म में, whether it be electrical, magnetic, in any form, and it gives out energy in visible or in optical form, then that medium is called an active medium. एक्टिव वर्ड वहां से आया है कि ऐसा मीडियम जिसको अगर तुम एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो वो एक्टिवली उसको कन्वर्ट करेगा इन लाइट एनर्जी. दैट्स द एक्टिव मीडियम. तो बेसिकली दिस इज द मेन थिंग इन आवर लेजर व्हिच इज बीइंग पम्प्ड. पंप हम लोग उसको कौन कर रहा है? सम काइंड ऑफ पंपिंग एजेंट इज पंपिंग दैट थिंग. सो इन दिस केस जो ये लेजर है, यू गाइस आर एबल टू सी दिस लेजर बिकॉज़ पंपिंग एजेंट हियर इज इलेक्ट्रिकल पंपिंग. सो इस लेजर के बैक में जो cells डले हुए हैं, these cells are providing electrical energy to a particular diode, and that electrical energy is the pump. So you are basically electrically pumping the laser. और भी methods होते हैं लेजर को पंप करने के लिए. You can also have magnetic pumping, you can also have optical pumping also at times. ठीक है? किसी भी फॉर्म में तुम अगर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो एक्टिव मीडियम को, that thing is called pump. नेक्स्ट अब ये क्या चीज है? दोनों चीजें, partial reflecting and 100% reflecting mirrors. Both of these combine to be called as an optical resonator. ठीक है? अब इस चीज को हम थोड़ा सा समझते हैं कहानी के तौर पे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है. इन लेजर एज आई टोल्ड यू गाइस, एक्टिव मीडियम तो मैंने बता ही दिया, पंप भी बता दिया. ऑप्टिकल रेजोनेटर की बात करते हैं. आई थिंक यहाँ पे अच्छा डायग्राम पे जाके समझते हैं. सो इफेक्टिवली देयर इज अ स्टोरी, इससे तुम्हें सारी चीज समझ में आ जाएगी. स्टोरी है व्हेनेवर यू गिव पंप टू एन एक्टिव मीडियम, सम सर्टेन नंबर ऑफ एटम्स विल बी एनर्जाइज्ड, एंड आफ्टर ए शॉर्ट व्हाइल बिकॉज वो अनस्टेबल स्टेट में, दे ट्राई टू फॉल बैक टू अ स्टेबल स्टेट, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ फॉलिंग बैक टू द स्टेबल स्टेट वो जो एनर्जी रिलीज करते हैं वो एज फोटॉन्स इजेक्ट होती है. दैट इज द होल पिक्चर, राइट? बट हमेशा ही इस एनर्जी की रिलीज को हम लोग लेजर नहीं बोलते. सर्टेन केसेस में हम बोलते हैं कि वो लेजर है. करेक्ट? क्योंकि ये जो मैं तुम्हें मेथड बता रहा हूँ ये सेम ही केस हमारे ट्यूबलाइट में भी हो रहा है, हमारे बल्ब में भी हो रहा है. तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, सर्टेन एटम्स एक्साइट होकर फॉल डाउन कर रहे हैं और फोटॉन्स के टर्म्स में एनर्जी निकल रही है. फिर हम इन सबको लेजर क्यों नहीं बोल रहे, इसको लेजर क्यों बोल रहे हैं? व्हाट्स द डिफरेंस? वो तुम्हें पता चलेगा इस चीज से, ऑप्टिकल रेजोनेटर से. सो व्हाट ऑप्टिकल रेजोनेटर डज इज, जो हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोटॉन्स, जो हम लोग बोलते थे स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है, वहां पे हमने क्या समझा था? एक रैंडमली एक फोटॉन जनरेट हुआ
that photon, it goes ahead and on its path there are two sets of atoms. Some atoms are in ground state, some of them are in excited state. When we said that population inversion has been achieved, then what we say is the number of atoms in excited state is more than number of atoms in ground state, correct? That means वो जो एक random photon आ रहा है, it will have more possibility or more probability of interacting with those excited atoms, correct? And because those are excited atoms, they want to fall back to a more stable state, यानी ground state पे वो आना चाहते हैं खुद ही. उनको बहाना मिलता है किससे? उस photon से. So that photon is the stimulus which is being provided to those atoms and then they fall back to ground state and as a result they generate another photon. जिसकी वजह से हमने पढ़ा था सिंगल फोटोन आता है, दो फोटोन निकलते हैं, वो दो फोटोन आगे जाते हैं, चार को निकालते हैं, 4, 8 मल्टीप्लिकेशन हो रहा है फोटॉन्स का. नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये तो हमने बहुत आइडियल केस सिनेरियो लिया कि फोटोन आया, उससे इंटरेक्ट किया, उसने इजेक्ट कर दिया. ऐसा भी हो सकता है, बहुत बार ऐसा होता है कि फोटोन किसी से इंटरेक्ट करे बिना सीधा चला गया. ऐसा क्यों हो सकता है? बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल नेचर ऑफ एन एटम. एन एटम इज more than 99% of empty space. अगर ये चीज अगर न्यूक्लियस है, इतनी साइज का अगर न्यूक्लियस है ना, तुम्हारी बिल्डिंग से बड़ी साइज का एटम है, तो तुम सोच के देखो कि एम्प्टी स्पेस कितना है. तो अगर एक फोटोन आ रहा है रैंडमली कहीं से दूर से, मान लो तुमने बॉम्बे से फोटोन फेंका है, कितनी पॉसिबिलिटी होगी कि फोटोन एग्जैक्टली आके इसके रास्ते में अटकेगा? बहुत कम पॉसिबिलिटी है ना. So very rarely photons interact with these things. Most of the time they pass through the empty space. इसकी वजह से क्या होता है, जो हम आइडिया लेके चल रहे थे कि एक फोटोन आया, इंटरेक्ट करके दो बनाए, दो ने चार बनाए, ठीक है, हैप्पी स्टोरी थी. In reality that is not the case. Maximum number of photons will pass through without interacting with anything because maximum space is empty space. अब इस चीज को ओवरकम करने के लिए क्या किया? इमेजिन करो ये दो गार्ड खड़े कर रखे हैं at either end, ठीक है. फोटोन एक वर्कर है, उसका काम है एडिशनल फोटोन को जनरेट करना, वरना वो यूजलेस है लेजर के टर्म्स में, करेक्ट. अगर वो नए फोटोन बनाते हैं तो उसने अच्छा काम किया, वरना वो यूजलेस है. वो फोटोन यहाँ से जनरेट होकर ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पे पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है. दैट मींस वो गार्ड के पास फोटोन आया, गार्ड बोलता है एक ट्राई और मार किया, उल्टा भेज देता है, ठीक है. फिर बेचारा मेहनत करता हुआ जाता है इसके थ्रू, अभी भी कुछ नहीं कर पाया, यहाँ दूसरा गार्ड खड़ा है, बोलता एक ट्राई और मार जा. सो इट कीप्स ऑन रेजोनेटिंग फ्रॉम हियर टू देयर, हियर टू देयर. ये बहुत सारे फोटॉन्स के साथ होता रहता है. दैट मींस एक ही फोटोन को तुम मल्टीपल टाइम्स उसके थ्रू अगर पास कराओगे, यू आर इफेक्टिवली इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ एन ऑप्टिकल मीडियम. जिसमें से एक बार पास करता तो इतनी लेंथ में कुछ पॉसिबिलिटी थी, लेट अस से 5% वाज द पॉसिबिलिटी ऑफ इट इंटरेक्टिंग विद द एटम्स. अगर 5% पॉसिबिलिटी को तुम 10 बार मल्टीप्लाई कर दो, 50% पॉसिबिलिटी हो गई, करेक्ट. सो पॉसिबिलिटी ऑफ फोटॉन्स in coming in contact with those excited atoms increases due to multiple times oscillation between these two optical lenses or optical mirrors in this case. And this whole picture from here to here to here, this is called an optical resonator. इसलिए इसको optical resonator बोलते हैं because it keeps on repeating those oscillations until and unless a large number of photons is generated. और जब नंबर ऑफ फोटॉन्स इतने ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है, इसके थ्रू जो बाहर जो फोटॉन्स निकलते हैं, दे एक्ट एज ए लेजर बीम. क्लियर हो रहा है? क्योंकि पार्शियली रिफ्लेक्टिंग है, ये हमेशा ही 50%, लगभग 50% फोटॉन्स को पास आउट होने देगी, बट रिमेनिंग 50% को बोलती है रिट्राई मार के आओ. सो दिस ऑप्टिकल रेजोनेंट इज समथिंग व्हिच मेक श्योर कि आपकी लेजर में वो एफिशिएंसी बन पाती है, जिसकी वजह से वो लेजर कहलाती है. वरना वो लेजर नहीं कराएगी, फोटोन तुरंत बाहर निकल जाएगा, नया फोटोन बनेगा वो भी तुरंत बाहर निकल जाएगा, फोटॉन्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा. और हम लेजर को तभी तो बोलते हैं ना, इट इज लाइट एम्प्लीफिकेशन. एम्प्लीफिकेशन तभी होती है जब बहुत सारे फोटॉन्स एक साथ निकलते हैं, वो बहुत सारों को एक्यूमुलेट होने का मौका ये रेजोनेंट कैविटी देती है ड्यू टू दिस ऑप्टिकल रेजोनेंस. क्लियर हुआ आइडिया?
इस पूरे पिक्चर को ऑप्टिकल कैविटी बोलते हैं, जिसके अंदर ऑप्टिकली जनरेशन ऑफ फोटॉन्स हो रहा है। सो दिस आउटसाइड बॉक्स, दिस कंप्लीट बॉक्स इज कॉल्ड ऑप्टिकल कैविटी। ठीक है, डायग्राम क्लियर हो गया? डायग्राम क्लियर होगा तो अगली तीनों स्लाइड्स तुमको क्लियर होगी। एक्टिव मीडियम, पंप एंड देन ऑप्टिकल रेजोनेटर। ठीक है, इन तीन चीजें क्लियर होगी। सो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द ऑप्टिकल रेजोनेटर प्रोवाइड्स फीडबैक ऑफ फोटॉन्स इनटू द मीडियम सो दैट स्टिमुलेटेड एमिशन इज सस्टेन्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें लिखा हुआ है स्टिमुलेटेड एमिशन इज सस्टेन्ड, यानी कंटिन्यूअसली स्टिमुलेटेड एमिशन होता जा रहा है। इनिशियली क्या होगा, स्टिमुलेटेड एमिशन हो सकता है, बट क्योंकि फोटॉन्स बाहर निकल जाते हैं, क्या पता उसके बाद स्टिमुलेटेड एमिशन ना हो पाए। उसको सस्टेन करने के लिए, यानी कंटिन्यूअसली आपकी लेजर ऑन रहे, उसके लिए हम लोग ये ऑप्टिकल रेजोनेटर यूज करते हैं। ठीक है, लेजिंग एक्शन अब क्या होता है, वही मैंने तुम्हें तीनों स्टेप्स बताए। फर्स्ट स्टेप इज पंपिंग, कहीं से तुम एनर्जी प्रोवाइड करोगे। सेकंड स्टेप इज पॉपुलेशन इन्वर्जन, पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट विल बिकम मोर देन नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज इनिशियली स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा, यानी कि रैंडमली कहीं से कोई फोटोन जो है वो निकलेगा और वो बाहर जाएगा उस पर्टिकुलर एटम से। ये चीज स्टिमुलेटेड एमिशन बनेगी कब, जब बेसिकली वो फोटोन एक एडिशनल एक्साइटेड एटम से इंटरेक्ट करके एडिशनल फोटोन को अगर रिलीज करेगा तो उसको हम बोलेंगे दैट इज स्टिमुलेटेड एमिशन। ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये वही है जो तुम्हें बताया। सी, ये दोनों स्पॉन्टेनियस एमिशन है। ये स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है अगर दूसरे एटम से इंटरेक्ट करते हैं, एडिशनल फोटोन जनरेट होते हैं, फिर वो स्टिमुलेटेड एमिशन कहलाता है। तो जब भी एक फोटोन एक दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर नए फोटोन को जनरेट करेगा तो उसको स्टिमुलेटेड एमिशन बोलते हैं। ठीक है, ये भाई लाइन को बताऊं तो इसी से होता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, बट एक्चुअली ऊपर दिखना थोड़ा मुश्किल होता है। ओके, अब हम आते हैं एग्जांपल्स के ऊपर कि लेजर एग्जिस्ट कैसे कैसे करती हैं। ठीक है, तो सम ऑफ दीज लेजर्स आर आल्सो प्रेजेंट इन योर लैब्स, सम आर नॉट। वन ऑफ द ओल्डेस्ट लेजर्स व्हिच वाज बीइंग यूज्ड इज ए रूबी लेजर। ठीक है, रूबी नाम सुना होगा तुम लोगों ने? इट इज सम काइंड ऑफ ए स्टोन, करेक्ट? ये सुना है ना? So it's not just some kind of a stone, it has certain optical properties related to it. So generally it is made of this Al2O3 with 0.05% of chromium atoms. This is specifically what ruby is, अगर एक केमिस्ट से पूछोगे तो। And both of these things are very very important. ये जो इसमें क्रोमियम के एटम्स हैं वो Cr3+ आयंस बनते हैं, that is something which makes sure कि लेजर एक्शन होगा। जो एक्टिव मीडियम की जो बात हो रही है ना, these are the active centers, एक नई टर्म आ रही है एक्टिव सेंटर्स। इफेक्टिवली क्या होता है, जब हमने एक्टिव मीडियम की यहाँ पे बात करी थी तो हमने एक हाइपोथेटिकली मान के चले थे हम कि एक मटेरियल है जिसमें सभी एटम्स ऐसा बिहेव करते हैं कि वो एनर्जी गेन करके नीचे आते हैं, बट इन रियल वर्ल्ड देयर इज नेवर ए प्योर मटेरियल, करेक्ट? सो होता क्या है, देयर इज जनरली अ मटेरियल व्हिच इज हैविंग सम काइंड ऑफ इम्प्योरिटी इन इट, and generally that impurity is the thing which is helping it to make it an active medium. वो impurity क्या करती है, वो impurity उसको एक metastable state generate करती रहती है। हमने क्या पढ़ा था, in lasers metastable state is a state which is close to the excited state but just below it, and it is used to make sure that those excited atoms are staying there for long enough time कि पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाए। अदरवाइज क्या हो रहा था, आप उनको एक्साइट कर रहे थे, वो फटाफट नीचे आ जा रहे थे, पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं हो पाता। मेटास्टेबल स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसका लाइफ टाइम थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू द एक्साइटेड स्टेट, जिसकी वजह से जब तुम उनको एक्साइट करते हो वो मेटास्टेबल स्टेट में आके बैठ के थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। वो जब वहां आराम कर लेते हैं, दैट टाइम इज इनफ फॉर यू टू पंप मोर एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट, दैट हेल्प्स यू achieve population inversion, and that is the fundamental thing which is required for lasing action. So यहाँ पे जो Cr3+ ions है ना,
These are the actual active centers. और सी कितने कम है ये 0.05%. तो रूबी लेजर में फंडामेंटली जो मटेरियल है दैट इज Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बट उसका कोई लेना देना एक्चुअली लेजर से नहीं है. एक्चुअल में जो उसमें लेजिंग एक्शन हो रहा है वो सिर्फ इस इम्प्योरिटी की वजह से हो रहा है. ठीक है. So it is nothing but a kind of a glass which is having a certain kind of impurity, and that impurity is something which gets excited and then it generates the laser action. So a diagram looks something like this. इसमें तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? This is your pumping circuit. ये जो सर्किट है ना, पावर सप्लाई कैपेसिटर, ये दोनों मिलके पंपिंग प्रोवाइड कर रहे हैं. कैपेसिटर क्यों लगाते हैं साथ में, कभी भी पता है? ऐसे सर्किट से तुमने हमेशा देखा होगा कैपेसिटर लगा होता है साथ में. कुछ क्या दिस इज अ डीसी पावर सप्लाई ओनली. जनरली कैपेसिटर को लगाने के पीछे दो रीजंस होते हैं. वन रीजन इज टू रिमूव एसी, करेक्ट, या फिर टू अलाउ एसी. कैपेसिटर क्या करता है, व्हाट डज इट अलाउ? हाँ में हाँ मिला है. एसी को अलाउ करता है, डीसी को स्टॉप करता है, करेक्ट. कैपेसिटर इज एन ओपन सर्किट फॉर डीसी ना. कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है XL वाला फॉर्मूला होता है, ओमेगा L वाला फॉर्मूला. व्हाट इट डज, अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो इट एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट, अगर फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो इट एक्ट्स एज ओपन सर्किट. सो इन दो सर्किट्स जहां पे हमारी किसी भी टाइप की फ्रीक्वेंसी की बात होती है, वहां पे कैपेसिटर का यूज इज टू मेक श्योर दैट एनी काइंड ऑफ डीसी सप्लाईज इज स्टॉप्ड फ्रॉम पासिंग थ्रू. यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं है, यहाँ पे हम एसी डीसी की बात नहीं कर रहे. यहाँ पे कैपेसिटर का यूज है टू स्टोर इनफ पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, so that it can be used to boost up this circuit. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हें एक कॉइल दिखाई दे रही होगी. This coil is a flash lamp. So just like जैसे ट्यूबलाइट्स में पहले चौक आया करते थे, it works in the same manner. That coil needs a large amount of potential difference, a large amount of storage of electrons to flash through them so that this coil glows up. Whenever it glows up, it provides pumping to this central rod. ये rod क्या है? This is the ruby crystal. So effectively तुम लोग एनर्जी को इलेक्ट्रिकली दे रहे हो, बट पंपिंग कैसे हो रही है यहाँ पे? पंपिंग इज ऑप्टिकल पंपिंग. तुम्हारी जो रूबी लेजर है, जो रूबी की जो क्रिस्टल है, उस रूबी के क्रिस्टल को एनर्जी कैसे मिल रही है? इससे, फ्लैश लैंप से. सो दैट इज ऑप्टिकल पंपिंग. ठीक है, क्लियर हुआ? इसका हम लोग एक बार एक ये वीडियो देखने से तुम्हें थोड़ा बेटर आइडिया लगेगा कि हाउ डज इट वर्क. Surrounding the xenon arc flash lamp used in aerial photography. An intense burst of light from the lamp initiates lasing. To see how it works, let's look at what happens with a weaker lamp. A flash will promote a few electrons from the ground state to an excited state. Use of energy, fall to a lower energy state without emitting light, and then drop from there to the ground state, giving off a burst of light. The light produced would be incoherent light, a spectrum of colors and intensities, just as my small laser made the ruby sphere glow. To create a laser takes an extremely powerful lamp. And the ruby laser repeating flashes will make something amazing happen. They supply so much energy that population inversion occurs. Here, more electrons in the energy level just above the ground state than in the ground state. Electrons from a population inversion returning to the ground state release light that starts an avalanche called stimulated emission. The photon produced during electron decays induces other excited electrons to simultaneously decay and release nearly identical photons. That creates coherent light, meaning that the crests and troughs of every light wave in the beam match up. Now, at this point, we have coherent light, but not yet the other two properties of laser light. To get a narrow beam with all the light rays parallel and of a nearly single wavelength requires an addition to the ruby rod. Maiman silvered the ends to reflect the light within the ruby cylinder. He made the two ends of the rod astonishingly parallel to each other. From top to bottom, the distance between these two mirrors differs by no more than 200 nanometers. Inside this resonant cavity, two things happen. First, any light rays that don't line up with the axis eventually just exit out the side of the cylinder, and the light parallel to the axis becomes intensified and narrowed in wavelength.
The mirrored ends create a standing wave, which means only light of particular wavelengths can exist inside the cavity. By choosing the rod length correctly, we can get the nearly single wavelength of light characteristic of a laser. A small hole in one of the mirrors or a partially silvered mirror allows the light to escape. ठीक है, skip. So basically it's the same thing जो मैंने तुम्हें previously समझाया था, उसी का इसमें थोड़ा सा visual interpretation में बताया. That ruby crystal is also having two mirrors on the opposite edges of this thing. Those are acting as optical resonators. So what they are doing is they are trying to make sure that those photons they keep on going to and fro in that particular cavity. And whenever they keep on going to and fro, they keep on multiplying, and then a lasing action is happening. So इसमें हमारा जो pumping agent था वो क्या था? That was that xenon flash around that particular crystal. वो पंपिंग करता था, उसकी वजह से एटम्स एक्साइटेड स्टेट में आते थे, उसके बाद में मेटास्टेबल स्टेट में आके रेस्ट करते हैं थोड़ी देर, उसके बाद में ग्राउंड स्टेट पे जब आते हैं तो द ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू मेटास्टेबल स्टेट इज कॉल्ड ए नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन. उस टाइम पे कोई फोटॉन्स जनरेट नहीं होते. रीजन इज द ट्रांजिशन इज वेरी क्लोज टू ईच अदर. एनर्जी का जो गैप है डेल्टा ई दैट इज सो स्मॉल कि उस एनर्जी के गैप के करस्पॉन्डिंग कोई फोटोन जनरेट नहीं हो सकता. सो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस आर जनरली conversion of energy in some other form which is non-radiative in nature. So you can assume that it might be generating heat energy within the laser. That is why generally these high energy, high power lasers they require some kind of cooling system, because ये जो non-radiative transition है, light की form में कोई energy convert नहीं हो रही, तो दूसरा option क्या बचता है? Heat की form में energy convert होती है. So that small delta E is converted into heat, and that heat needs to be dissipated by the system in order to make it working for long hours of time. So see, generally it is in the form of cylinder of 4 centimeters in length and 1 centimeter in diameter. ये details तुम लोग पढ़ लेना, मैं तुम्हें यही बताया अभी. xenon gas lamp है जो flash करके उसको activate कर रहा है. This is the band diagram for that laser. So as if you guys see here, there are two transitions from E1 to E3 and E1 to E4. ये ट्रांजिशंस किसके हैं? पंपिंग के ट्रांजिशंस हैं. इसको ये मत सोचना कि ये लेजर दो कलर जनरेट कर रही है. जो रिटर्न का ट्रांजिशन है सेम है. दिस इज द ट्रांजिशन व्हिच मेक्स श्योर कि किस कलर की लेजर जनरेट होगी. व्हेन यू आर पंपिंग इट, देन सम ऑफ दोस एटम्स विल बी पंप्ड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू E3 स्टेट, सम ऑफ देम विल बी पंप्ड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू E4 स्टेट. इन दोनों ही स्टेट्स के लिए मेटास्टेबल स्टेट अलग अलग हैं, बट इतनी क्लोज है कि उनको कॉमन मान लेते हैं. These two states are very close to each other. These are referred as E2 here. So effectively, fast non-radiative transitions occur here. Metastable state पे they stay for a while, and then when they go from metastable to ground state, red color laser is generated. And see, red color में दो नंबर दिए हुए हैं, 694.3 and 692.7 नैनोमीटर. दो कलर इसलिए हैं बिकॉज इफेक्टिवली ये दो ही वैल्यूज हैं अलग अलग, बट दे आर सो क्लोज टू ईच अदर कि इफेक्टिवली दोनों से जो तुम्हें कलर जनरेट होगा लाइट का, दैट विल कम आउट टू बी ऑलमोस्ट द सेम कलर. रेड कलर की लाइट दिखाई देगी. सो इस समय क्या पता चलता है? लेजर जो है दैट इज एक्सट्रीमली मोनोक्रोमेटिक बट नॉट प्योरली मोनोक्रोमेटिक. तो यहाँ प्रूव हो रहा है दो कलर दिख रहे हैं, दो अलग अलग वेवलेंथ है, बट दीज आर स्टिल प्रीटी क्लोज टू ईच अदर. Regular base if you try to generate a particular wavelength of light, that the deviation in wavelength will be huge. इसमें बहुत कम है deviation wavelength का. ठीक है? So this is the energy diagram for your ruby laser. Pumping mechanism तुम लोग समझ ही गए हो सब कुछ. Population inversion, we have gone through these all. This is a very short revision. अगर तुम रिवाइज करना चाहोगे कि how a laser works, these are the 3 steps. 3 level pumping scheme. 3 level क्यों बोला है? Those are the 3 levels: ground state, excited state, and the metastable state. Active centers are chromium 3+ ions. ठीक है? Because those are the ones which get excited. Light from xenon flash lamp is the pumping agent. यानी ऑप्टिकली पंपिंग हो रही है लेजर की. इसकी एफिशिएंसी पुअर होती है. ठीक है? रीजन इज पुअर क्यों हो रही है? इफेक्टिवली जब भी हम 3 स्टेप की लेजर की बात करते हैं, दैट जो एडिशनल स्टेप जो है फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू मेटास्टेबल स्टेट,
उसमें जितना ज्यादा गैप होगा उतनी ज्यादा एफिशिएंसी पुअर होगी, बिकॉज दैट एनर्जी इज नॉट यूज्ड एनीवेयर, वो हीटिंग में जा रही है. एन आइडियल लेजर विल ऑलवेज बी ground to excited and excited to ground. There will be no metastable state. But sadly those kinds of lasers don't exist because excited states they fall back very fast. So due to that generally the lasers are made of 3 step. Operates in pulse mode, ये भी एक कमी है, continuously on नहीं रहती. It keeps on pulsating. Although तुम लोग उसको observe करोगे तुम्हें ऐसा दिखेगा कि it is continuously on. The reason is it happens very fast. The frequency of on and off is so fast that it seems to be continuously on laser, but actually it is a pulsed laser. Clear? So that is how a ruby laser works, and that is how our unit of laser is finished. ठीक है? Yeah, that was all. ठीक है? Clear? So next time we will be studying about the next component. This was laser. Next time we will be studying about optical fibers, how they are used, why they are used, what are their certain components. It will be just an introduction to optical fibers. There won't be much details about it, how we use all of these things in the real world communication. Okay.